सो चैप्टर 4 का एक और टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, बायट सवार्ट्स लॉ। इसको हम एम्पियर्स थ्योरम भी कहते हैं। इसको हम लैप्लास लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो तीन नामों से, तो जो मशहूर है वो बायट सवार्ट्स लॉ है, ठीक। दैट इज है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying conductor, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। You know that when a charge moves like electron or any proton, it produces a current and that produces a magnetic field around it, ठीक है ना। ये आपको पता है। Now when current flows, there is not a single charge which produces the field. There are many charges which produce the field, ठीक है ना। हर एक चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो किसी पॉइंट पे अगर करंट किसी कंडक्टर में चल रही है, तो उसकी वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पे फील्ड देखना हो, तो we have to individually find a field produced by the single charge at that point, and then add these magnetic fields, a vector field. We have to add all the fields due to all the electrons which produce at that point. So we will have to sum all of these vectorially, okay, which is very difficult. So Biot-Savart studied this studied the magnetic field produced by the current carrying element and gave a certain law that is called the Biot-Savart law, ठीक। So let us suppose that we have a conductor of any shape, okay, x and y, through which a steady current I passes through it, okay. This is the current is passed through because it may be connected to some source, okay। यहाँ कोई EMF का सोर्स है, ठीक है ना, वो इसमें करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। Now we want to find, let us say, an electric field produced at this point, ठीक, point P, due to this current carrying conductor. Let us take an element here. Since we cannot find, which is very difficult to find, जो पहले में पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसमें मूव कर रहा है करंट की वजह से ये फील्ड ढूंढना, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक, dl, which is a vector quantity, ठीक, dl, और जो करंट उसमें बहती है I हर एक एलिमेंट में, तो हम उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट idl। तो उस करंट एलिमेंट, लेट अस से हमारा एक करंट एलिमेंट है a b, ठीक, इसकी डायरेक्शन, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। तो इसके सेंटर, मिसाल इसका सेंटर है O, ठीक। Now we want to find electric field due to this element at point P, which is at whose position vector or displacement vector is r। यहां पर हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। Let us suppose that this position vector and current element make an angle theta at its center, okay। Now this is the direction of current element idl. Now dl is a vector quantity, this is a current is scalar quantity, so to make it current to make this thing a vector, so idl is a vector quantity, ठीक है ना, because scalar to vector is a vector. Now Biot-Savart found that while in experimenting, they found first the magnetic field, let us say dB, small magnetic field dB produced at point P due to this current element, they found was proportional to the strength of current, यानी जितनी ज्यादा करंट इसमें होगी उतना ऑब्वियस है कि ज्यादा फील्ड होगा, number 1. Number 2, they found that magnetic field produced at this point P, the observation point, also was directly proportional to the length of the current element, ठीक है ना, length of this element, okay, dl. This is the second factor. Third, they also found that this alpha was directly proportional to sine of angle theta, that is the angle between current element and this position vector r, ठीक है ना. This is third. Also, they observed that this magnetic field
dB was directly inversely proportional to square of distance between the current element, center of current element and the point P. That is invert. It behaved जैसे कोलम्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर लॉ बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बिहेव करता, उसी तरह से बिहेव करता है. ठीक. If we combine all of these four factors, we get dB is proportional to I dl sin theta by r square. ठीक. Now we can write it as dB is equal to k I dl sin theta by r square. ठीक है. Where what is k? K is constant of proportionality. ठीक है. Constant of proportionality and is equal to in SI system dB k is equal to in SI system k is equal to mu 0 by 4 pi. ठीक है. And in CGS system it is 1 by c where c is the velocity of light. तो CGS system में हमें नहीं लेना है, तो हमें SI system लेना. So dB is equal to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square. ठीक है. This is non-vector form of this Biot-Savart law. ठीक है ना. Biot-Savart law का ये non-vector form, ये vector form में नहीं है. ठीक. Now, so far as this mu is concerned, mu, what is this mu? Mu naught. It is called as, it is a constant and is called permeability of free space or vacuum. ठीक है. permeability of free space और vacuum. ठीक है ना. अच्छा, ये क्या है इसका, ये पूरा क्या मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं. नाउ mu 0, that's the permeability, is the ability of substance, is the ability of substance to acquire magnetization. Acquire magnetization. Magnetization in magnetic fields. ठीक है. इसके बारे में जब आगे पढ़े इसमें और पढ़ना है इसके बारे में. ठीक. एंड इट इज मेजर, it is measure of the extent to which field can penetrate matter. तो ये जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एबिलिटी ऑफ एक्वायर मैग्नेटाइजेशन, यानी जो मटेरियल हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे वो कितना मैग्नेटाइज होगा, वो इस पे डिपेंड करता है. वो परमेबिलिटी डिफाइन करती है. या ये क्या बताती है, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द फील्ड कैन पेनिट्रेट. क्योंकि फील्ड की लाइंस होती हैं, तो जब आगे प्रॉपर्टीज आप देखोगे, कुछ सबस्टेंस में ज्यादा फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करती है, किसी में कम, कोई एक्सपेल ही करता है, टोटल उसमें से पास ही नहीं होती है. तो ये वो डिफाइन करता है. ठीक है ना. म्यू 0 का जो वैल्यू होता है ऐसा सिस्टम में, दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7. ठीक है. 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और हेनरी ये इसके एसआई यूनिट्स है पर मीटर, और वेबर एम्पियर पर मीटर. ठीक है ना. ये आगे हम इनको स्टडी करेंगे यूनिट्स को. ठीक है. नाउ अभी जो हमने ये इक्वेशन की थी, ये मैंने दोबारा यहां पर लिखी. अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं. ठीक. स्पेशल केसेस. केस 1. ठीक है. केस 1 में क्या है. ठीक. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180. ठीक है. देन साइन थीटा, साइन दिस 0 और 180 और साइन 180
is equal to 0. If we substitute in this, so dB will be equal to 0. So if angle between DL and R is 0, then magnetic field will be 0. What does that means? That means अगर हमारे देखिए ये हमारे एंगल ये DL अगर है ये R है, ठीक है ना, तो ये थीटा है, तो 0 कब होगा? जब R ऐसे आएगा, तो R किस डायरेक्शन में होगा? R will be in this direction, ठीक है. What will that? That will be along axis of conductor. So magnetic field at all points along the axis of a conductor is 0. So we can write the magnetic field due to a current carrying conductor is 0 at all points. यहाँ मैं लिखूंगा at all points on the axis of conductor. ठीक है. Next, case second. If theta is equal to 90 degree. ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गया इसका, मिनिमम. ठीक है. अब if the theta is 90 degree, then sin 90 is equal to 1. ठीक है ना, sin 90 is also dB will be equal to mu 0 by 4 pi I dl by r square. This is the maximum value. ठीक है, this is the maximum value of the magnetic field. So in that case, so we may say that dB is maximum. ठीक है, 90 कैसे बनेगा? जब ऐसे होगा. ठीक है ना, तो जो भी इस पॉइंट पे आएगा, ऐसे यहाँ इस प्लेन में जो 90 बनाएगा, सो इट विल बी अ प्लेन. सो dB will be maximum in a plane passing through conductor, ठीक है ना, and perpendicular to its axis, यानी ऐसे. तो अगर ये कंडक्टर है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, अगर ये कंडक्टर है, ये इसका करंट एलिमेंट है, और आर भी इसी डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है. तो अगर मैं घुमाऊंगा, ये प्लेन बनेगा इसके परपेंडिकुलर टू दिस. तो ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको, ऐसे. अगर करंट एलिमेंट है तो ये जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ऐसे. तो इसमें जो फील्ड होगा ये मैक्सिमम होगा. ये करंट कैरिंग एलिमेंट कंडक्टर है, ठीक है ना, तो यहां पर मैक्सिमम, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर. ठीक है. नाउ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक वेक्टर सोर्स है, करंट आइडियल, ठीक, करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक, ये वेक्टर सोर्स है. सो मैग्नेटिक फील्ड is a vector field. So we can write this our Biot-Savart law in vector form. ठीक है. Now हमने भी देखा the magnetic field produced, उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था, करंट एलिमेंट ने जो किया था, mu by 4 pi I dl sin theta by r square. ठीक है. नाउ R जो है हमारा ये वेक्टर है, ठीक, DL एलिमेंट, उसको वेक्टर एलिमेंट या करंट एलिमेंट में हम लिख सकते हैं. देखिए कैसे. नाउ dB इज इक्वल टू mu 0 4 pi I sin थीटा पहले लिखूंगा, ठीक, DL इसको मैं, चलो साइन थीटा बाद में लिखते हैं, आइडियल लिखते हैं, ठीक, इनटू R में करूंगा खुद, यहां से आएगा R3, ठीक है, और साइन थीटा इधर है. ठीक है. नाउ dB इज इक्वल टू, देखिए अब कैसे होगा. देखिए ये A B साइन थीटा, आपको पता है A क्रॉस B किसके बराबर होता है? AB साइन थीटा इंटू एन कैप. ठीक है ना, वायर इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे. देखिए A B साइन थीटा, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, mu 0 by 4 pi I dl क्रॉस R. ठीक है ना, साइन थीटा चला गया इसमें, ठीक, एंड R3. ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक. इसको और भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dB
इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल आर को, क्योंकि एनी वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय its magnitude and unit vector in its direction. So r can also be written as unit vector into its magnitude divided by r cube. So this can be further written as dB is equal to mu 0 by 4 pi I r और एक r कैंसिल होगा, r क्यूब है, ठीक. So it will be dl cross r a divided by r cube divided by r square. आर स्क्वायर, ठीक है. तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ है, ठीक है ना. ये भी आप लिख सकते हो और ये भी, क्योंकि ये डीबी है दिस एक एलिमेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो अगर पूरा देखना हो तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक. ये जो है हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो कैसे? तो यहां पर लिखते हैं डीबी इंटीग्रल दैट विल बी टोटल फील्ड बी, ठीक है ना, which will be equal to integral mu 0 by 4 pi I dl cross r cap into divided by r cube r square, ठीक है ना. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b is equal to integral mu 0 I by 4 pi I dl cross r, फिर ये रहेगा नीचे r cube, ठीक है. अगर इसका मैग्नीट्यूड ही खाली लिखना हो तो B विल बी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल म्यू 0 I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है ना. ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज. नाउ ये जो है इसको हम और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. वो मैं भी दिखा रहा हूं, ठीक. नाउ ये जो बायट-सवार्ट लॉ, इसको हम बायट-सवार्ट लॉ में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड dB किसके बराबर निकाला था, dB इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई, ठीक है ना, आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, डिवाइड बाय आर क्यूब. इसको हम इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी भी लिख सकते हैं. कैसे? वी नो दैट करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए. क्योंकि जे वेक्टर है इसलिए हम पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी डी एल से, ठीक है. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जे अब इसको वेक्टर लगा दे. नाउ आई डी एल को ऐसे रखेंगे. नाउ ए इंटू डी एल, वाइल ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डी एल जो करंट एलिमेंट की लेंथ है, ठीक है ना. सो इट विल बी डीवी, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, ठीक है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा जे डीवी विल बी इक्वल टू वी इज द वॉल्यूम आई डी एल. तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या निकलेगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट विल बी इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आईडीएल के बदले में क्या लिखेंगे हम, जे डीवी, ठीक. जे को पहले ऐसे रखूंगा, जे इसके साथ लूंगा, ठीक, डीवी इधर, ठीक है, डिवाइड बाय आर. ये एक और फॉर्म. अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो इंटीग्रेट करके ये आएगा इंटीग्रल म्यू 0 पाई, इसको बाहर भी लिख सकते हैं हम, ठीक, जे क्रॉस आर डिवाइड बाय आर डीवी, ठीक, डीवी, ठीक है. इसको हम इन टर्म्स ऑफ करंट में चार्ज भी लिख सकते हैं. वी नो दैट आई डी एल जो होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए इसको लिखूंगा मैं, चार्ज इंटू डी टी, चार्ज डिवाइड बाई डी टी, चार्ज बाई टाइम इज इक्वल टू करंट इंटू डी एल, ठीक है ना. डी एल ये है. नाउ डी एल, नाउ व्हाट इज डी एल बाई डी टी, dl by dt is the velocity, so it can be written as जो v वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है, so v वेक्टर, v is the velocity, ठीक है, स्मॉल v. so इसके यहाँ पर हम अगर इस ये जो यहाँ पर हमने दिया था db, इसको हम क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आइडियल के बदले में, ठीक है ना. ये जो आइडियल है, so db किसके बराबर बनेगा, db will be equal to म्यू 0 by 4 pi q v cross r by r cube, and total magnetic field will be b, which will be equal to integral mu 0 by 4 pi q v is the velocity in cross r divided by r cube, ठीक है. Now direction of b, d और db, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए. Now so the direction of this is given by right hand RH, राइट हैंड स्क्रिव रूल. और जो हम
ए क्रॉस बी प्रोडक्ट में करते हैं वही डायरेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, A cross B, that means A is rotating towards B, ठीक है ना, थ्रू एन एंगल, स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल नहीं लेना होता, ठीक। वेक्टर A is rotating दिस, तो इसका मतलब है जो सिक्र है आपने उसको क्लॉकवाइज लिया, तो क्लॉकवाइज अगर देखो तो वो अंदर चला जाएगा, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सो A क्रॉस B की डायरेक्शन जो वेक्टर निकलेगा C वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर B क्रॉस A यानी B रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स A, तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप सिक्र को करेंगे तो वो ऊपर आएगा, ठीक है ना, तो तब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। ए क्रॉस बी इस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा ऐसे क्लॉकवाइज, इनटू द प्लेस तो वो ऐसे दिखाते हैं, ठीक। अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर तो डॉट से दिखाते हैं, सिंबल है ना। हमारे पास डीबी की डायरेक्शन है ना, डीबी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड सिक्योर रूल। तो वो क्या है, देखिए डीबी किसका प्रोडक्ट है, डी एल क्रॉस आर का है ना इसमें, तो यही डायरेक्शन इसकी करेगा फिक्स। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर। सो डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी दैट ऑफ डी एल क्रॉस आर, ठीक है, दैट इज डी एल इज रोटेटिंग टुवर्ड्स आर, ठीक है ना। तो यहां पर बता रहा हूं मैं, देखिए आप नाउ हमें डीएस की डायरेक्शन मैंने क्या कहा था, इट विल बी गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, क्योंकि उसमें शामिल है। नाउ सपोज दैट वी हैव दिस इज डीएल एलिमेंट, करंट एलिमेंट डीएल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज योर आर इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। नाउ डीएल क्रॉस आर दैट इज डीएल इज रोटेटिंग टुवर्ड्स आर, ठीक है, तो क्या आएगा, इट विल गो, अगर आपके पास स्क्रू है तो वो इट विल गो इनटू इट, या अगर आप ढक्कन को ऐसे करोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ आर है, तो अगर मैं ऐसे करूं डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर क्या अंदर चला जाएगा, यानी ऐसे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ डीबी, ठीक है। सो अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, ठीक। तो इस डायरेक्शन में आपका डीबी होगा अलोंग दिस एज, ठीक है ना। अगर इस एज के अलोंग ये है डीएल, इस एज के अलोंग आर है, तो डीएल किस एज के आएगा, इस एज में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका डीबी होगा, ठीक है, क्लियर। या अगर हम ऐसे दिखाएंगे, देखिए डीएल इस डायरेक्शन में है, तो आर मिसाल के तौर पर इस डायरेक्शन में है, आर की ये डायरेक्शन है, तो अगर ये डीएल क्रॉस आर देखना तो इस डायरेक्शन में रोटेट करा, सो इट विल बी व्हाट, into the plane of the paper, यानी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ DL एंड R, सो DL क्रॉस R डायरेक्शन में होगा into the paper ऐसे। अगर DL हमारा ऐसे मिसाल के तौर पर ये आपका R है इस डायरेक्शन में, ये आपका DL है, ठीक है। नाउ DL क्रॉस R अब ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे अगर आप करोगे किसी चीज को नल खुल जाएगा या ढक्कन खुल जाएगा या सिक्रू बाहर आ जाएगा, सो वो कैसे दिखाएंगे उसकी डायरेक्शन ये, सो DB will be, the direction of DB will be in the direction of this, and it will be in the plane, it will be in the direction perpendicular to the plane containing both DL and R, जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, ठीक। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि बायोट सावर्ट लॉ इज एनालॉगस Coulomb's law, ठीक है ना। Coulomb's law in many ways they have many similarities as well as dissimilarities, ठीक। तो what are the similarities between Biot-Savart law and Coulomb's law? Similarities यानी उनमें similarities क्या क्या है, पहला both are long range fields, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज होता है, क्योंकि ये देता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या देता है हमें, बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड डीबी और बी बोथ आर लॉन्ग रेंज, ठीक है। दूसरा बोथ ओबी इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q/r²। इसी तरह से हमने देखा भी डीबी जो है वो किसके बराबर का, μ0/4π IDL sin θ/r², सो बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, ठीक है।
तीसरा, both obey principle of superposition. यानी अगर करंट एलिमेंट ऐसे है तो इसमें हजारों लाखों करंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक। तो अगर किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो ये जो सारे इसके मैग्नेटिक फील्ड, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट, ये करंट एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट जो प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, इनका वेक्टर सम, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 4, बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर लीनियर in their source. Both are linear source. Both are linear in their source. तो सोर्स इसका क्या है, करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड का IDL, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, दैट इज चार्ज। देखिए जब इनकी रिलेशन होती है, इनमें लीनियर डिपेंडेंस है, दे आर रिलेटेड लीनियरली टू ईच अदर, सो बोथ आर इन लीनियर सोर्स, ठीक है ना, डिपेंडेंस, ठीक है ना, बोथ हैव लीनियर सोर्स डिपेंडेंस। तो इसका सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का ये, करंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस, ठीक है ना। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस, पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, क्यों, द चार्ज क्यों, ठीक है ना। तो चार्ज क्यों, इसका चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज होता है। बट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स, उसका सोर्स क्या है, करंट एलिमेंट IDL चूंकि वेक्टर है, पूरा करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E is in the direction of the charge, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मिसाल, उसका मतलब क्या है, चार्ज की, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आपका चार्ज क्यों फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज की जो आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो भी फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन की चार्ज की है, तो चार्ज की माइनस नेगेटिव डायरेक्शन, या फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। बट जो डायरेक्शन ऑफ बी इज इन द डायरेक्शन perpendicular to the plane containing DL and R, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो एंगल डिपेंडेंस, ठीक है ना, उसमें कोई एंगल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q by R स्क्वायर, इसमें कोई एंगल की डिपेंडेंस नहीं होती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड B हैज एंगल डिपेंडेंस, यानी जो वो किसके बराबर होता है, μ0/4π IDL sin थीटा, ठीक, बाय R स्क्वायर, μ0 IDL sin थीटा, तो ये है sin थीटा डिपेंडेंस, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है, अगर हम देखें एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर मैं इसको 4π से मल्टीप्लाई करूं, 4π एप्सिलॉन 0 और μ0 को डिवाइड बाय 4 पर, तो कैंसिल होगा, तो फिर यही निकलेगा। इसका वैल्यू आपको पता है, इट इज 1/9 इंटू 10⁻⁹। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 10⁻⁻7 इसका, ठीक है। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1/3 इंटू 10⁸, ठीक है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको पता है व्हाट इज 3 इंटू 10⁸, इट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। सो दैट वी राइट बाय c, सो इट इज 1/c²। तो यहाँ रिलेशन क्या आई, μ0, ये रिलेशन है इनके दरमियान, ये आगे हमें पढ़ना है स्टडी, और c इज इक्वल टू, जब इन दो को रिलेट करेंगे, 1/√ऑफ
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ई किस एप्सिलॉन किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जुड़ा है, म्यू किसके साथ, मैग्नेटिज्म, तो दोनों जुड़ के हमें क्या देते हैं, लाइट। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने ये कंक्लूजन लाया, पता है क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ये मैग्नेटिज्म के साथ जब दोनों ये कंबाइन होते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। सो आगे हम स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल है यहाँ पर, एन एलिमेंट डेल्टा एल, ओके, equal to delta x into I cap, ठीक है, that is it is along x axis, I cap means along x axis, is placed at origin and carries a large current capital I equal to 10 ampere, ठीक है। What is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.45 meter, ठीक है, delta x being equal to 1 centimeter। so solution इसका है, तो पहले हमें ये axis है, ठीक है, ये y axis, let us suppose this is y axis and this is x axis, we have an element delta x, current element delta x which is along x axis at origin, ठीक है ना। now ये इसकी जो width है delta x है, ठीक, क्योंकि along x axis है, so it is I cap। यहाँ पर carries a large current, तो इसमें करंट कितना है, करंट आपका है I equal to 10 एम्पियर, ठीक है। What is the magnetic field on the y axis, तो y axis पे एक पॉइंट है, सो हमारा जो r है, r हमारा है इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है ना। y axis एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, तो एंगल यहाँ पर जो है, क्योंकि एक्सिस के दरमियान एंगल 90 होता, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो वी नो दैट magnitude of the magnetic field produced by this current element is equal to dB, which is equal to mu 0 by 4 pi I dl divided by sin theta by r square। तो अब हम इसके वैल्यू देंगे, सिंपल, तो वैल्यू क्या देंगे, इसका पता है हमें 10⁻⁻⁷, करंट हमारा है 10 एम्पियर, ठीक है। dl कितना है, dl हमारा है दिस मैग्नीट्यूड उसका 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻² सेंटीमीटर, ठीक, इनटू मीटर, साइन थीटा दैट इज साइन 90 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर, दैट इज 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब हमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, dB विल बी इक्वल टू देखिए -7 -2 +1 दैट इज 10⁻⁻8 साइन 90 1 के बराबर, दैट इज 1/4, ठीक है। सो dB विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁻8 और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, ये हमें पता चल, देखो अगर हम ये असल में dl क्रॉस r है, तो ऐसे जाएगा तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाहर की डायरेक्शन, दैट इज अलोंग z एक्सिस। और देखें तो वही है कि नहीं, देखिए नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r, ठीक है, तो डायरेक्शन तो यही देगा। सो dl क्या है हमारा, dl हमारा है डेल्टा एक्स आई, ठीक है, क्रॉस r क्या है हमारा, r इज अलोंग y एक्सिस, दैट इज वो कितना है, let us write it as along, that is along J, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, r की डिस्टेंस है 0.5, ठीक है ना। तो चूंकि अब हमें डायरेक्शन ही देखने, तो ये क्या बचेगा हमारा, डेल्टा क्रॉस, इसको y भी लिख सकते हैं, y ही लिखेंगे, ठीक, y मैग्नीट्यूड है, बचा क्या, I क्रॉस J। नाउ वी नो दैट I क्रॉस J इज इक्वल टू K, ठीक है ना, K कैप, ठीक है ना। सो I क्रॉस J इज इक्वल K कैप, ये तो आपको पता है, वो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सो K इज, और पॉजिटिव भी है, सो ये डायरेक्शन देगा, सो इट विल बी अलोंग z एक्सिस, इस z एक्सिस में होगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन dB इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दैट विल बी आउट ऑफ द पेपर, दैट इज ऐसे दिखाएंगे, अगर यहाँ दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे।